topics which we will begin now is the one of the important topic, or you can say one of the small unit, that is the puberty. So guys, this is a यहाँ से related एक दो questions important है. एक question आएगा यहाँ पे precocious puberty. Precocious puberty is quite important in that topic, and here also there is a Turner and Marshall theory will come. That is also important because from the Turner or Marshall theory they will ask the stages usually. Alright guys, so let's start the topic without delaying. So what is the basic meaning of puberty? Puberty का basic meaning क्या होता है? What is mean of the puberty? So it's a very common word. So the basic meaning regarding the puberty is, Mandeep ji, Mandeep sir, hello, चौधरी साहब, तो इसमें अंधेरा क्यों आ रहा है सर? ये लाइट ऑन नहीं ऑन करोगे क्या हुआ? हाँ तो यार देखा ये फोन ले दो, इसकी आवाज आ रही थी बीच बीच में, घंटी बज रही थी यार, वैसे मिस्टेक मत किया। क्यों फेस डार्क, वो कैसे वैसा आ रहा था, क्या बोलते हैं उसको, काला आ रहा था। यहाँ तो फेस की तो वैल्यू है। So another very good morning my students. As till now we have discussed regarding the very of the different topics regarding the gynecology. So I hope that till now our previous sessions are very well cleared for you guys. After that today we will begin another one of the new topic, that is the puberty. So guys, what are the basic ideas hope you may have regarding the puberty? What is the meaning of puberty? What are the different stages of the puberty? And what are the basic pathological disorders of the puberty? So guys, what is the meaning of puberty means what? Puberty means it is the starting of secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics in male or female. So that is the basic meaning of puberty. So what is the meaning means? It is the starting of secondary sexual characteristics, या it is the appearance of, आप स्टार्टिंग की बजाय यहाँ पे वर्ड ये भी ऐड कर सकते हो, appearance of secondary sexual characteristics in male or female, that is the called as puberty. So second question, एक important question यहाँ पर यह आएगा कि what is the basic या cause या what is the basic physiology behind the puberty? puberty के स्टार्ट होने के पीछे क्या बेसिक इटियोलॉजी हो सकती है कि फीमेल में या मेल के अंदर ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? सो द मेन रीजन इज, you can say that is the hypothalamus, pituitary gonadal axis. See, this is the basic reason. Hypothalamus pituitary gonadal axis, hypothalamus pituitary gonadal axis is responsible for the puberty. Gonadal means you can add the word here ovary. Which word you can add here? That is the ovary. So the basically hypothalamus pituitary gonadal axis, you can mention like this also, HPO axis. Hypothalamus pituitary ovaries are responsible for the puberty. आपने देखा होगा hypothalamus एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH. What is that name? GnRH. GnRH की what is the full form of the GnRH? GnRH means gonadotrophic releasing hormone. Gonadotrophic releasing hormone. ये जो GnRH है, it will stimulate the pituitary gland and pituitary gland will release FSH and LH. When the pituitary gland release FSH and LH, then the finally ovary will come in the action. What ovary will be acting?
once the ovary receive the stimulation from the FSH and LH, the ovary will release estrogen, and this estrogen, ovarian estrogen, is the main cause of puberty, for the beginning of puberty. प्लीज ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है यहाँ पे, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? द आंसर विल बी estrogen, ovarian estrogen you can answer. All right, so the estrogen is overall whole soul responsible for the puberty. So guys, this is well clear now that HPO axis is mainly behind the story of puberty. H for hypothalamus, then pituitary, then the gonadal, means ovary. So hypothalamus जो hormone release करेगा GnRH, that will act on the anterior pituitary gland. Anterior pituitary will release FSH hormone, which stimulates the ovarian follicles, and ovarian follicles will release more amount of estrogen hormone. And LH is responsible for the rupture of ovarian follicle, and that will lead to the ovulation. उसका क्या मतलब होगा? Ovulation means releasing of the ovum. All right, now along with the estrogen, estrogen के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीजें responsible हैं. So what are the two another things which are responsible for the puberty? In that you must remember that the thyroid gland and adrenal gland, thyroid gland and adrenal gland also play very important role in the puberty. Thyroid gland and adrenal. So because the thyroid gland हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए? बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, बेसल बॉडी मेटाबॉलिज्म. तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का जो पूरा काम है हमारे शरीर का, मेटाबॉलिज्म जितनी ज्यादा होगी पेशेंट की या किसी भी लाइक इंसान की या ह्यूमन बीइंग की हाइट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, स्केलेटल मसल्स का मास बढ़ेगा. तो ओवरऑल थायराइड ग्लैंड जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के कारण से हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए. प्लस बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड इज बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू बिकॉज इट प्रोड्यूस द एंड्रोजन्स. एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड यूजुअली प्रोड्यूस दी एंड्रोजन्स, एंड एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल, एंड्रोजन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्यूबर्टी. देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, इंक्रीज इन दी सीबम प्रोडक्शन, इंक्रीज इन दी सीबम प्रोडक्शन, देन एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स. What I told, axillary and pubic hair increase in the sebum production. Then you can say like this the voice changes. इंसान की जैसे सपोज मेल की बात करूं तो मेल की आवाज का भारी हो जाना, फीमेल की वॉइस का सॉफ्ट हो जाना, मतलब वोकल कॉर्ड में चेंजेस आना, वॉइस में चेंजेस आना. इन सारी चीजों के लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल? एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल. ये सारी चीजें याद रखना. एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन दी वॉइस, or you can say that is the axillary and next the axillary and pubic hair growth, and finally increase in the sebum production. sebum का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है हमारे फेस, जैसे सपोज कीजिए बेसिकली जो भी स्वेट ग्लैंड्स हैं या जो भी सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, तो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है उनकी हाइपरट्रॉफी के कारण. तो बाद में पेशेंट को या जो भी इंसान है प्यूबर्टी के बाद में स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है. मीनवाइल जैसे सिबेसियस ग्लैंड जो होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड दे प्रोड्यूस द sebum, and once the androgens stimulate the sebaceous gland after the puberty, the patient will have या the person will have more amount of sebum production. अगर sebum का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, what will happen? There will be appearance of like you can say small or like oily face, फेस का ज्यादा ऑयली होना, उसके अलावा पिंपल्स, यू कैन से लाइक बेसिकली एक्नीज, यू कैन से एक्नीज. तो फेस के ऊपर आपने देखा होगा बेसिकली किसी भी बच्चों की जैसे एज ऑफ लाइक 12, 14, 15, 16, ये जो एज होती है जिसको हम प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, उस एज में उनके फेस पे एक्नीज वगैरह ज्यादा होती हैं, पिंपल्स ज्यादा होती हैं. उसका कारण क्या है? एड्रिनल एंड्रोजन्स. गाइस एंड्रोजन्स क्या होते हैं? एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे एंड्रोजन्स होते हैं. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. अगर एंड्रोजन का नाम आए तो सबसे पहले ऊपर किसका नाम आएगा? टेस्टोस्टेरोन. हमेशा ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट एब्यूडेंट एंड्रोजन विच इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. टेस्टोस्टेरोन मेल में दो जगह से रिलीज होता है. टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द मेल रिलीज फ्रॉम द टू पार्ट, वन इज द
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। दूसरा, इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम दी लेडिंग सेल्स ऑफ दी टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर जो लेडिंग सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, वो सेल्स भी क्या रिलीज करती हैं? एंड्रोजन्स को रिलीज करती हैं। ऑलराइट गाइज, सो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू दैट थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल along with the HCO axis in the beginning of puberty. Alright, अब चलिए अगले मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एक कंसेप्ट तो शायद आपकी क्लियर हुई होगी, दैट इज लाइक बेसिकली एक तो एंड्रोजन्स और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट्रोजन हार्मोन, दे आर होल रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के लिए ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्यूबर्टी के लिए जैसे सपोज टेस्टोस्टेरोन के अलावा ग्रोथ हार्मोन IGF-1, that is the insulin like growth factor 1. So is growth factor and IGF-1 they will act together and that will lead to increase in the height. हाइट का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये मेनली किसके कारण? ग्रोथ हार्मोन और उसका जो सहयोगी होता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का क्या नाम है? IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, दैट इज रिलीज फ्रॉम दी लीवर। तो ये चीजें ग्रोथ बढ़ाती हैं, हमारी हाइट को बढ़ाती हैं आफ्टर दिस बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। और बाकी जो भी चीजें होती हैं वो सारे डेवलपमेंट जो होते हैं, वॉइस चेंज होना, सीबम का प्रोडक्शन होना, या उसके अलावा एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना, उन सब चीजों के अंदर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन प्लेज दी वाइटल रोल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी चीजें बताई उनमें किसका रोल था? टेस्टोस्टेरोन का। बट ओवरऑल जो प्यूबर्टी का अगर कभी भी नाम आता है तो प्यूबर्टी के लिए सबसे मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं गाइज अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल थ्योरी, प्लीज याद रखना ये जो थ्योरी किसने दी थी? द कंसेप्ट इज गिवन बेसिकली बाय द टेनर एंड मार्शल। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरीज देयर आर 5 फिजियोलॉजिकल चेंजेस there are 5 physiological changes occurs in puberty. So 5 common in female. तो फीमेल के अंदर बेसिकली अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल थ्योरी 5 बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच अकर्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? इस थ्योरी के अनुसार देखिए कौन कौन से 5 बेसिक चेंजेस अकर हो रहे हैं। नंबर 1, that is the thelarchy. क्या चीज थी? thelarchy. The number 1 changes is the thelarchy. Number 2 changes is the adrenarchy, then pubarchy. Number 4, increase in the height, and number 5 is the menarche. Number 5 is the menarche. So guys, what you basically understood here, according to Tanner and Marshall theories, the 5 basic physiological changes occurs in a female baby at the time of puberty. Puberty के समय ये 5 basic changes ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। जब ये 5 चेंजेस नोटिस होंगे तभी हम कहते हैं कि बेसिकली फीमेल इज हैविंग दी प्यूबर्टी या शी इज गोइंग थ्रू द प्यूबर्टी एज। नंबर 1 thelarchy, number 2 adrenarchy, number 3 pubarchy, number 4 increase in the height, height का बढ़ना या growth या very high like increase in the growth hormone or IGF-1, then last one क्या है? menarche. Guys, thelarchy means what? What is the basic meaning of thelarchy? Thelarchy means you can say डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एक फीमेल बेबी के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना बेसिकली क्या कहलाता है? थैलार्की कहलाता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज थैलार्की। नेक्स्ट इज द एड्रेनार्की। एड्रेनार्की मीन्स यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। नेक्स्ट इज द प्यूबार्की। प्यूबार्की मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ pubic hair, development of pubic hair, then height का बढ़ना, then finally last one देखिए, सबसे लास्ट में क्या लिखा है मैंने? menarche. So what is the meaning of menarche? The first menstrual cycle. The first menstrual cycle या beginning of menstrual cycle in the female is called as
मेनार्की। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होने को हम क्या कहेंगे? मेनार्की कहेंगे। सो आई होप दैट दीज 5 स्टेप्स आर क्लियर फॉर यू गाइस। हमेशा ध्यान रखना एक चीज के लिए, दीज आर द स्टेप बाय स्टेप और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वाइज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मेनार्की स्टार्ट हो जाए और उसके बाद में थैलार्की आए। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना। सबसे पहले थैलार्की, उसके बाद में एड्रेनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज इन द हाइट एंड फाइनली मेनार्की। मतलब प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें सबसे लास्ट में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना। तो गाइज इसको हमेशा लास्ट में रखना। थैलार्की हमेशा सबसे पहले आएगी। थैलार्की का मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। फीमेल बेबी के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिट होना, ब्रेस्ट के अंदर बेसिकली जो उनकी एलुलर सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होना, लैक्टेटिंग डक्ट है उनकी ग्रोथ होना, वो सारी चीजें। और थैलार्की के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थैलार्की के लिए सबसे मेन जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन के साथ साथ यहां पे प्रोलैक्टिन प्लस progesterone is also responsible, but most important is the estrogen. The most important, the very first one is the estrogen. That is the main hormone which is responsible for the thैलार्की या breast development. Because estrogen क्या करवाता है? As we have discussed already, estrogen is responsible for the hyperplasia. तो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज थे, मेमोरी ग्लैंड के जो टिश्यूज थे, उन टिश्यूज का हाइपरप्लेसिया करवाना, उनके नंबर बढ़ाने का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ऑल राइट। तो थैलार्की का शायद आपको मतलब समझ में आया होगा। हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ये भी समझ में आया। चलिए अगला एड्रेनार्की एंड प्यूबार्की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखना, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। जो एड्रेनार्की और प्यूबार्की है इसके बारे में कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होता है कि सर पहले प्यूबार्की होता है उसके बाद एड्रेनार्की होता है, या कई लोग अपना सपोर्ट पॉइंट देते हैं कि नहीं पहले एड्रेनार्की होता है उसके बाद में प्यूबार्की होता है। तो एक चीज हमेशा क्लियर रखना, जो सेकंड और थर्ड चेंजेस है दैट इज द एड्रेनार्की एंड प्यूबार्की, दैट यूजुअली अकर्स टुगेदर। मींस मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, जो रेशियो लिया गया सेंसस है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स द चेंजेस ऑलमोस्ट अकर्स, द चेंजेस यूजुअली अकर टुगेदर। मीन्स कोई बड़ा नहीं है कि पहले एड्रेनार्की या प्यूबार्की होता है, बट फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले एड्रेनार्की याद रखिए, उसके बाद में आप क्या याद रखोगे? प्यूबार्की याद रखोगे। होप इट इज क्लियर नाउ, फाइन। और अब मुद्दा ये आता है कि इन एक्सिलरी हेयर्स का एंड प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होने का क्या कारण था? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इनके लिए जिम्मेदार कौन था? एंड्रोजन। शायद आपको याद आ गया ना, इंक्रीज इन द सीबम प्रोडक्शन, मैंने कहा था एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स का बढ़ना, वो इसमें चेंजेस आना, कौन जिम्मेदार बताया था मैंने? एंड्रोजन हार्मोन। सो द एंड्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। नाउ इंक्रीज इन द हाइट, हाइट का बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1 एंड IGF-2 भी रिस्पॉन्सिबल है। हम IGF-1 ही अकेला नहीं बोल सकते। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के लिए। देखिए ग्रोथ हार्मोन जो होता है, द ग्रोथ हार्मोन इज बेसिकली रिलीज फ्रॉम दी, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम दी एंटीरियर पिट्यूटरी। कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन विल ट्रेवल टू द लीवर, ये लीवर के पास ट्रेवल करता है। ग्रोथ हार्मोन वंस इट रीच टू द लीवर, द लीवर विल रिलीज दी प्रोटीन। क्या रिलीज करेगा? प्रोटीन्स को रिलीज करेगा। व्हाट आर दोस प्रोटीन्स? द प्रोटीन्स आर लाइक IGF-1 and IGF-2. These are the two basic proteins which are released from the liver in the response of growth hormone. अब क्या है? These proteins have the receptors throughout the body. बॉडी में मतलब आप कह सकते हो कि बॉडी की जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, मसल्स प्लस जितने भी हमारे शरीर की बोन्स और सेल्स हैं, उन सब के पास बेसिकली IGF-1 और IGF-2 के क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली इनका क्या होगा? देयर विल बी ग्रोथ। इनमें क्या होगा? सब में जब IGF-1 और 2 इनको मिलेगा, इन सब की हाइट बढ़ेगी, इन सब की बेसिकली मसल मास जो है, बोन मास है, वो बढ़ेगा। तो देखा आपने, मतलब मेरा मेन मोटो आपको यहां पर यह समझाने का था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो डायरेक्टली खुद ग्रोथ नहीं करवाता, इतनी ज्यादा डायरेक्टली भी एक्टिंग कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करता,
ग्रोथ हार्मोन कैन एक्ट, बट यूजुअली ग्रोथ हार्मोन जो होता है आप ऐसा कह सकते हो कि एक अपना एक पार्टनर रखता है असिस्टेंट के रूप में, दैट इज दी IGF-1 एंड IGF-2। इन दोनों के अंदर भी IGF-1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IGF-1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली लीवर के पास पहुंचता है ग्रोथ हार्मोन और लीवर इन प्रोटीन को रिलीज करता है, IGF-1 एंड IGF-2। जब कोई बच्चा छोटा रह जाता है जिसकी हाइट नहीं बढ़ती तो हम उसको सप्लीमेंट के रूप में, सपोर्ट के रूप में हम लोग उन पेशेंट्स को IGF-1 भी दिया जाता है उनको हाइट के बढ़ने के लिए। तो गाइस हुआ क्या, IGF-1 और IGF-2 के रिसेप्टर्स थे पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी की मसल्स के पास, हमारी बॉडी की बोन्स के पास। व्हेन दे रिसीव दीज टू प्रोटीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द बोन मास, इंक्रीज इन दी मसल मास, इन सब का बढ़ना, ये सब कुछ क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ऑलराइट, तो ये ग्रोथ की स्टोरी समझ में आई आपको। तो ग्रोथ हार्मोन की पीक एज क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन की पीक एज यही तो प्यूबर्टी की एज होती है, वही एज बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का पीक लेवल या पीक टाइम होता है, बिकॉज इसी समय बेसिकली बच्चों की हाइट है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। ऑलराइट, फाइनली द न्यू लास्ट वर्ड विच इज देयर फॉर यू गाइज, दैट इज दी मेनार्की। सो गाइज मेनार्की का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। आई टोल्ड यू दैट मेनार्की मीन्स इट इज द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड एज मेनार्की। एंड मेनार्की के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, एस्ट्रोजन, ओवेरियन एस्ट्रोजन, ओवेरियन एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनार्की। होप इट इज क्लियर नाउ, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि कौन सा हार्मोन क्या क्या बेसिक अपना काम एक्टिंग कर रहा है या क्या अपना रोल प्ले कर रहा है किस चीज में, प्यूबर्टी के अंदर। सो गाइज दीज आर द बेसिक physiological changes which occurs in the female according to the Tanner and Marshall theory. Number 1 thalarchy, adenarchy, then pubarchy, increase in the height, and finally menarche. I hope it is well clear for you guys now. Next one, as इसके अलावा आपको यहाँ पर प्यूबर्टी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बेसिकली सर्विक्स एंड यूट्राइन बॉडी रेशियो। उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहूंगा गाइज, एक छोटा सा पॉइंट जो एक कॉमन सेंस का भी कह सकता हूं पॉइंट, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्या एज होती है प्यूबर्टी की। द एज ऑफ प्यूबर्टी इज बेसिकली बिटवीन 12 to 16 ईयर ऑफ एज, मतलब 12 से 16 साल की जो एज होती है, 12 to 16 ईयर ऑफ एज, दैट इज अ वेरी कॉमन एज फॉर दी प्यूबर्टी। मोस्ट ऑफ द प्यूबर्टी यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग दिस एज, 12 to 16 ईयर ऑफ एज। याद रखना 12 to 16 ईयर ऑफ एज। फीमेल के लिए अगर बेसिकली कहूं तो फीमेल के अंदर यूजुअली प्यूबर्टी थोड़ा सा अर्ली बिगिन होता है कंपेयर टू दी मेल, मतलब फीमेल में जल्दी स्टार्ट होता है। ऑल राइट, द पीक एज ऑफ प्यूबर्टी इज, द पीक एज ऑफ प्यूबर्टी इज 13 ईयर ऑफ एज। मीन्स जब कोई फीमेल बेबी करीबन ऑलमोस्ट 13 ईयर की एज के आसपास होता है तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे विल डेवलप दी प्यूबर्टी, उनमें क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। ऑल राइट, सो गाइस दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग दी एज ऑफ प्यूबर्टी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी इफ इट इज अकर बिफोर द एज ऑफ 10, कितने साल से पहले, 10 साल की एज की उम्र, जब बेबी 10 साल का हुआ है पूरा बच्चा, तो 10 साल की एज से पहले अगर प्यूबर्टी बिगिन हो रहा है, इट मींस इट इज कॉल्ड एज प्रीकोशियस प्यूबर्टी, मींस बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 10, इट इज कॉल्ड एज प्रीकोशियस puberty. When the puberty begins after the age of 16, 16 साल की एज के बाद में अगर प्यूबर्टी बिगिन होती है, then it is called as delayed puberty. What it is called as? It is called delayed, मतलब डिले हो जाना प्यूबर्टी का, delayed puberty. All right. Now let's see the ratio of uterine body and cervix, or you can say the length ratio basically. Ratio of uterine body and cervix according to length, ये मेन इंपॉर्टेंस है। मैं किसके अनुसार, उनकी लंबाई के अनुसार, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लेंथ। तो लंबाई के अनुसार बेसिकली यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का क्या रेशियो होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। सो द रेशियो ऑफ, लाइक आप यहां पर लिख सकते हो यूट्रस का बॉडी एंड दिस इज द यूट्राइन
सर्विक्स, ये यूट्रस का सर्विक्स हो गया। इनका क्या रेशियो होता है? तो यूट्राइन बॉडी एंड द सर्विक्स रेशियो एट बर्थ, मैं कब की बात कर रहा हूं? बर्थ की, व्हेन अ फीमेल बेबी विल बोर्न। तो एट बर्थ द रेशियो इज 1:2. व्हाट इट मीन्स? 1:2 means the when the suppose the length of cervix if it is 2 centimeter, अगर cervix की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो बॉडी यूट्रस की जो बॉडी की लंबाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। मतलब cervix से बॉडी की लेंथ क्या होती है? हाफ होती है, ये याद रखना। यूजुअली लाइक एक चीज, चलो हम इसको आगे लेके चलते हैं, यहां पर समझ में आया होगा आपको। तो एट बर्थ इनका रेशियो 1:2 होता है, सर्विक्स की लंबाई जस्ट डबल होती है बॉडी को कंपेयर करते समय। एट मेनार्की मतलब प्यूबर्टी की एज में, जब प्यूबर्टी बिगिन होती है, जब मेनार्की स्टार्ट होता है, उस समय बेसिकली इनका रेशियो क्या होता है? एट मेनार्की द रेशियो विल बी 1:1। क्या हुआ? 1:1। मतलब यूट्रस की बॉडी की जो लेंथ थी लगभग सर्विक्स की लेंथ भी सेम हो गई, तो दोनों की लेंथ लगभग इक्वल हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक लाइक during the childbearing age. So during the childbearing age, what will be the ratio basically? At that time the ratio will be 2:1. This is the most crucial point you must remember about that one. See, it means that like whenever a female, like once she begin her menarche, menstrual cycles, and after that throughout the childbearing age, means like suppose the menarche begins from the age of 15 means, and she received the menopause at the age of 45. तो 15 से 45 जो 30 ईयर का जो गैप था, that is the basically child bearing age. Means during this period the female can produce the offspring. She can produce the offspring, and this is the age when the ratio will be 2:1. 2:1 means, अब देखिए जस्ट उल्टा हो गया, बॉडी की जो लेंथ है उसकी लेंथ से सर्विक्स की लेंथ जस्ट हाफ होती है, ये हमेशा याद रखना। तो बेसिकली अगर आपको इस चीज के बारे में लेके चलूं तो फंडस यूट्रस के नॉर्मली अगर एक एडल्ट फीमेल की अगर आप बात करें तो फंडस की लेंथ मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है ये टॉपिक। द फंडस लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर। देन जो केविटी होती है यूट्रस की बॉडी जो है उसकी लेंथ है करीबन 3.5 सेंटीमीटर। ऑल राइट, एंड देन फाइनली पॉइंट कम्स टू सर्विक्स, एंड द सर्विक्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो गाइज आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 3 + 1 5। तो 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली पूरे यूट्रस के सर्विक्स के ऊपर वाले हिस्से की, सर्विक्स के ऊपर का जो भी पूरा पार्ट है उस पूरे एरिया की लेंथ कितनी है? लगभग 5 सेंटीमीटर, और सर्विक्स की लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो समझ में आया होगा आपको कि बॉडी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ। सो दिस इज द बेसिकली रेशियो। अब बात करते हैं एट द मेनोपॉज। So from the menopause, what will be the basic ratio? So at the menopause, from the menopause onwards, the ratio will be just changed. Menopause बाद में क्या होता है? After menopause, the organs, basically the female reproductive organs will shrink in the size. They will automatically shrink in the size. तो जब वो shrink होने लग जाते हैं, उनकी atrophy होना begin हो जाती है. Then the ratio will again change, and now the ratio will be 1:1. What did you understand? आपने क्या देखा यहाँ पे? बॉडी की लेंथ कम हुई है। किसका लेंथ कम हुआ है? बॉडी का लेंथ एज कंपेयर टू दी सर्वाइकल लेंथ। सो व्हाट हैपेंस? सो एट द मेनार्की एंड एट मेनोपॉज अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट द रेशियो विल बी सेम। ये चीज आपको एक ट्रिक के रूप में, एक आइडिया के रूप में मैंने आपको बताई है। मींस मेनार्की के समय जो रेशियो था लगभग सेम रेशियो मेनोपॉज के समय भी होता है, सेम, दैट इज दी 1:1। सो गाइज ये 4 पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीज आर लाइक दिस रेशियो इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी टाइम इट आस्क्ड इन द एग्जाम, बट आप लोग प्लीज केयरफुल रहना। कई बार क्या होता है, यूजुअली सर्विक्स का नाम पहले दे देते हैं वो लोग और बाद में बॉडी वर्ड रख देते हैं कि सर्विक्स बॉडी रेशियो। तो उसमें आपको क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है आप इधर ले आना, इधर वालों को आप उधर लेके चले जाना। तो नेवर कंफ्यूज इन दैट वन। सो व्हाट आई टोल्ड यू, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट बर्थ द रेशियो विल बी 1:2। मींस सर्विक्स की जो लेंथ है वो बॉडी की लेंथ से लगभग डबल है। ऑलराइट, 1:2। तो बॉडी के कंपेयर करते हुए सर्विक्स की लेंथ जस्ट डबल होती है। उसके बाद मेनार्की के समय भी क्या होता है? द रेशियो विल बी 1:1 आई एम सॉरी 1:1 मींस ऑलमोस्ट द रेशियो विल बी द लेंथ ऑफ सर्विक्स एंड बॉडी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। नाउ फ्रॉम द चाइल्ड बियरिंग एज, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है,
जो 30 इयर्स का जो गैप था, उस एज में जो बेसिकली यूट्रस की बॉडी की लेंथ होती है वो ज्यादा बढ़ती है. द लेंथ विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर. सो कंपेयर टू द यूट्रस, यूट्राइन बॉडी लेंथ इज नाउ 2 cm, like double compared to the cervical length. So the ratio is 2:1. All right. And finally menopause. Menopause means the organs become shrink in the size and now the ratio will be 1:1. Means menarche का जो रेशियो था लगभग सेम रेशियो menopause के बाद में भी सेम हो जाता है. All right guys. So this was the regarding a small topic for you guys, that is the ratio of uterine body and cervix. I hope that it is well clear for you guys, and also इस पॉइंट को आप स्किप मत कीजिए. You must remember about this point. It has been asked in the different exams in the previous. Now अब एक अगले पॉइंट की बात करते हैं. तो मैंने आप लोगों को बेसिकली रिगार्डिंग द प्यूबर्टी की स्टेजेस के बारे में, अकॉर्डिंग टू द टनर एंड मार्शल थ्योरी, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली थरोली डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है. अब एक और पॉइंट, अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं. एक पॉइंट आता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी. गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकोशियस प्यूबर्टी? क्या मतलब होता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी का? प्लीज टेल मी. प्रीकोशियस प्यूबर्टी, सो ये एक आप ऐसा कह सकते हो कि वन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्यूबर्टी. किस रिलेटेड? प्यूबर्टी से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है. प्रीकोशियस प्यूबर्टी का क्या मीनिंग होता है? प्रीकोशियस प्यूबर्टी मीन्स इट इज द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी अर्ली. अगर सरल लैंग्वेज में लिखो तो आप ऐसा बोल सकते हो, बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी अर्ली या वेरी लाइक बिफोर द एज से पहले प्यूबर्टी का बिगिन हो जाना या स्टार्ट हो जाना. स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी अर्ली मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाना. कैसे अर्ली मतलब? जैसे सपोज कीजिए लाइक इफ hierarchy occurs before the age of 8 years and if menarche occurs before the age of 10 years, it is called प्रीकोशियस प्यूबर्टी. शायद आप समझ में आया होगा आपको. सो मतलब अगर किसी फीमेल में प्यूबर्टी के लिए बेसिकली मैंने आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताए थे. सबसे पहले उसमें क्या था? थैलार्की. मींस इफ ए फीमेल डेवलप थैलार्की बिफोर द एज ऑफ, इफ ए फीमेल डेवलप थैलार्की बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर. क्या लिखा मैंने? देखिए यहां पे 8 ईयर. If the female begins the theilarchy before the age of 8 years and if she develops menarche before the age of 10 years, it is called as precocious puberty. All right? तो एज से पहले, मैंने आपको ये शब्द पहले भी बताया होगा जब मैं प्यूबर्टी की आपको एज बता रहा था. मैंने कहा था अर्ली प्यूबर्टी और लेट प्यूबर्टी. अर्ली प्यूबर्टी का मतलब मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था? मींस इफ द प्यूबर्टी बिगिंस बिफोर द एज ऑफ 10, it is called precocious puberty. Delayed puberty means if puberty occurs after the age of 16, it is called delayed puberty. So basic meanings of precocious puberty आपको समझ में आ गया होगा. If the puberty begins before the age of 8 or if the menarche occurs before the age of 10, it is called as precocious puberty. All right. Now क्या कारण होता है? What is the basic reason? ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रीकोशियस प्यूबर्टी. प्रीकोशियस प्यूबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? सो लाइक कुछ माइंड सेटअप किया होगा आपने ब्रेन के अंदर कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार हो सकता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी के लिए. सो द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीकोशियस प्यूबर्टी इज मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन. विच हार्मोन? इट इज एस्ट्रोजन हार्मोन. प्लीज याद रखना इसके लिए. अब चलिए मैं इसको बिगिन में लाइक लेट मी बिगिन टू दी बेसिक्स regarding this topic. So guys, precocious puberty के लिए the hormones which are responsible, let me go for the etiology of precocious puberty. The etiology of precocious puberties are varies, means बहुत सारे problems हो सकते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे hormones से related. Like you can remember first of all ovarian estrogen.
It is the most important या most important responsible factor for the precocious puberty. Means if a female develop the precocious puberty, सबसे mainly जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होगा? इसको आप एंडोजिनस एस्ट्रोजन भी कह सकते हो. You can call as a endogenous estrogen या estradiol. Basically ये conjugated estrogen होगा. That is the mainly factors for the precocious puberty. So guys, let me begin to that point. Now, if a female develop ovarian tumor or if she have adrenal hyperplasia, या if there is a, you can say infection, or if there is a tumor or any major lesion in hypothalamus or pituitary gland. एक और चीज आप याद रख सकते हो, नंबर 4 फैक्टर, दैट इज दी एस्ट्रोजन ओरल पिल्स. यूजुअली एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग बेसिकली इनको यूज करते हैं. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? सो गाइज बेसिकली प्रिकोशियस प्यूबर्टी के लिए जो चीजें जिम्मेदार थी, द फैक्टर्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिकोशियस प्यूबर्टीज आर, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में. ओवेरियन हार्मोन, दैट इज दी ovarian estrogen is a hormone which is responsible for precocious puberty, or you can say that is the another one is the androgens. Ovarian estrogen is the first factor. Number 2 factor is the androgen. अगर एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है तो डेफिनेटली देयर विल बी प्यूबर्टी. वहां पर क्या होगा? प्यूबर्टी बिगिन हो जाएगी. बट मेनली अगर एग्जाम में आपके पास एंड्रोजन ऑप्शन भी आए एंड यू विल ऑल्सो गेट द एस्ट्रोजन ऑप्शन, मींस ओवेरियन हार्मोन, तो आपको सबसे पहले एस्ट्रोजन के ऊपर ही जाना है. तो एस्ट्रोजन इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रिकोशियस प्यूबर्टी. सेकंड फैक्टर इज दी हार्मोन की अगर आप बात करो तो एंड्रोजन हार्मोन. ऑल राइट, चलिए अब इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं अगर ओवेरियन ट्यूमर है. बेसिकली ट्यूमर्स आर बेसिकली द कॉमन, यूजुअली अगर आप बात करो तो ट्यूमर्स 2 टाइप की होती हैं. वन ऑफ द सिक्रेटरी ट्यूमर एंड देयर इज ए सप्रेसरी ट्यूमर. सिक्रेटरी ट्यूमर का मतलब क्या हुआ? सिक्रेटरी ट्यूमर मीन्स एनी ट्यूमर दैट कोज अनकंट्रोल्ड हाइपरप्लेसिया. जब हाइपरप्लेसिया करवाता है एंड लेटर ऑन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सो मेनी हार्मोन्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, उस ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी ट्यूमर कहते हैं. सो गाइज लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द सिक्रेटरी ट्यूमर, मोस्टली इट अकर्स इन द ओवरीज. So क्या होगा? when the ovary have the tumor, what will happen? Ovary will produce more amount of hormone. So basically which hormone? The ovary will definitely produce the estrogen hormone. Other than that, there is another factor, hyperplasia, means it is also because of the tumor. So when the ovary develop any of the, like when the adrenal gland develop any of the tumor, like you can say adrenal tumor or adrenal hyperplasia, what will happen? That will lead to the increased amount of androgens. अगर एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर होगा, डेफिनेटली द फीमेल विल हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस एंड दैट विल कॉज द प्रिकोशियस प्यूबर्टी. सो एड्रेनल ट्यूमर के बाद, ओवेरियन ट्यूमर के बाद थर्ड फैक्टर इज दी ब्रेन पे चलते हैं हम लोग. मैंने कहा था आपको 3 चीजें बताई थी कॉमनली. हाइपोथैलेमस नंबर 1 फैक्टर, पिट्यूटरी ग्लैंड नंबर 2 फैक्टर एंड फाइनली ओवेरीज, दैट इज द थर्ड फैक्टर. हाइपोथैलेमस और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इंफेक्शन है, कोई सेप्टिसीमिया हो गया है, या अगर सपोज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बेसिकली कोई लीजन्स बन गए हैं या कोई ट्यूमर हो गया है. ट्यूमर की अगर आप बात करो तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं, या यू कैन से पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा. मैक्रो एडिनोमा, पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा की कंडीशन में क्या है, या पिट्यूटरी एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है. बेसिकली यूजुअली इट इज ए बिनाइन ट्यूमर. तो इस केस में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बेसिकली जो एक्टिविटीज होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की वो बढ़ जाती हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज मोर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट विल रिलीज मोर अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच. तो जितने भी जो हार्मोन्स है उनकी एक्टिविटी सारी की सारी बढ़ जाती है और उसको बोलते हैं पिट्यूटरी हाइपर एक्टिविटी, या यू कैन से पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा. एडिनोमा, ओमा मीन्स डेफिनेटली ट्यूमर. ऑल राइट, सो दैट केस, इस केस में भी क्या होगा, अगर किसी फीमेल बेबी की एज अभी 8 इयर्स ओल्ड हुई है एंड दैट बेबी इज डेवलप एनी ट्यूमर इन द ब्रेन, डेफिनेटली शी विल हैव अर्ली प्यूबर्टी. ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन ओरल पिल्स. इफ एनी फीमेल if she is taking high amount of estrogen oral intake, बाहर से exogenous, not endogenous, now I will talk about exogenous. If she is taking any of the pills, then definitely the estrogen level will increase in the body and estrogen is the also responsible for the puberty. So that female also can develop the precocious
puberty. So guys, these are the basic things या basic etiological factors behind the puberty. Puberty के पीछे ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं. Now, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे. What is the diagnosis of precocious puberty? How will we diagnose about the precocious puberty? So there are many factors through that we can diagnose the precocious puberty. Let me talk about that. Diagnosis of precocious puberty. How will you diagnose? आपको कैसे exactly पता लगेगा कि क्या कारण हुआ है? How आप like you will know that this is the cause. ये एक मेन कारण था जिसके कारण इस बेबी में क्या हुआ, प्यूबर्टी जल्दी बिगिन हो गई. तो अगर आप इसकी बात करो तो बेसिकली वी कैन नंबर 1 we can go for the X-ray hand, mainly wrist X-ray और skeletal system, bone X-ray आप कह सकते हो. Why we are going for hand X-ray और wrist X-ray? To know the bone age. किसके लिए? To know the bone age. Bone की accurately आपको इसी से पता चलेगा कि उस बेबी का एक्यूरेटली लाइक एज क्या है. सो टू नो द बोन एज, इसलिए हम उस पेशेंट का क्या करवा रहे हैं, रिस्ट एक्सरे. तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज को अगर डायग्नोज करना होता है तो यूजुअली हम लोग क्या करवाते हैं, बोन एक्सरे लेते हैं. नंबर 1 तो ये हो गया बोन एक्सरे. नंबर 2 फैक्टर, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर सीटी स्कैन और MRI. Why we are going for this one, CT scan or MRI? The CT scan or MRI is mainly we are doing to know about any of the tumor. अगर कोई हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया या कोई ट्यूमर है उसको डायग्नोज करने के लिए what we are doing, we are going for the CT scan and MRI. Next one, number 3, we can go for एक important factor है that is the hormonal profile. Hormonal profile. Guys, how the hormonal profile like will be useful in this case? The hormonal profile means we will know about the hormonal values of सबसे पहले thyroid hormones, then we will go for ovarian hormones, then we will go for the adrenal hormones. ये 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होंगी. मींस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का हमें पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको कहा था ओवरीज, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं दैट आर होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी के लिए जैसे सपोज मैंने कहा आपको कि एड्रेनल ग्लैंड का कौन सा, एंड्रोजन. एंड्रोजन हार्मोन्स में मैं किसकी बात कर रहा था, इफ यू टॉक अबाउट द एंड्रोजन देन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्टोस्टेरोन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द DHEA. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 हार्मोन्स. ये 2 हार्मोन्स एंड्रोजन्स की कैटेगरी में आते हैं और एंड्रोजन्स का लेवल अगर किसी फीमेल में बढ़ता है डेफिनेटली शी विल हैव प्रिकोशियस प्यूबर्टी. DHEA, व्हाट इज द DHEA? डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन. डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन. डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन is released from the adrenal cortex. ये कहां से रिलीज होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है. नेक्स्ट इज दी टेस्टोस्टेरोन. ये दोनों एंड्रोजन्स जो मिलके मेनली क्या काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द वॉइस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द सीबम प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स. इन सब के लिए ये लोग मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ व्हाट इज द नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल? व्हाट इज द नॉर्मल सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल? तो मेनली अगर आप बात करो मेल के लिए, मेल में टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल वैल्यू जो होता है दैट इज फ्रॉम 280 टू 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर. 280 से लेकर कितना, 1100 नैनोग्राम. नैनोग्राम, आई टोल्ड यू दैट नैनोग्राम, प्लीज याद रखना यूनिट के बारे में, नैनोग्राम डेसीलीटर. इफ यू टॉक अबाउट फीमेल में डेफिनेटली एंड्रोजन्स का लेवल कम होता है. फीमेल में एंड्रोजन्स का लेवल कम होता है. अगर उनका लेवल कम होता है इसलिए उनमें कोई मेजर वॉइस चेंजेस नहीं आता, उनके लिए बेसिकली जो हेयर प्रोडक्शन है वो भी कम होता है. तो फीमेल के अंदर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होगा दैट विल बी 50 to 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर.
50 to 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो गाइज डायग्नोसिस का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फर्स्टली वी विल गो फॉर द बोन एक्सरे, वी विल गो फॉर द रिस्ट एक्सरे। रिस्ट एक्सरे व्हाई वी आर डूइंग? टू नो द बोन एज। वी कैन गो फॉर सीटी स्कैन और एमआरआई। ओके, इसके अलावा आप एक और डायग्नोसिस लिख सकते हो, दैट इज दी यूएसजी, पेल्विक सोनोग्राफी। मीन्स यूएसजी हम क्यों कर रहे हैं? एनी ओवेरियन ट्यूमर है, अगर ओवरीज में कोई बड़ा स्कार फॉर्मेशन या कोई ट्यूमर है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करवा सकते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अदरवाइज लाइक हार्मोनल प्रोफाइल इज मोस्ट सफिशिएंट, मतलब इस प्रोफाइल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थायराइड हार्मोन मतलब T3 T4 लेवल, TSH लेवल, देन ओवेरियन हार्मोन्स मींस द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देन बेसिकली यहाँ पे स्टेरॉइड्स का लेवल, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल, कोर्टिसोल का लेवल क्या है, उस कोर्टिसोल के लेवल के अलावा मेनली टेस्टोस्टेरोन या डीएचए का लेवल कितना होता है, ये चीज आपको मेनली पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम ऑन द अनदर टॉपिक गाइस, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल? टेस्टोस्टेरोन के बाद एक और वैल्यू है, दैट इज द सीरम एस्ट्रोजन लेवल। The serum estrogen level, what is the normal serum estrogen level? It will be 50 to 300 picogram per ml. Picogram, याद रखना, what is that? Picogram. देखिए, if you talk nanogram then it is like this. If you talk picogram then it is -12. -12 means picogram, -9 means nanogram. Alright, so basically the value of estrogen in a female, usually the value will be between the age like 50 to 300 picogram per ml, and if you talk about after menopause the value will be less than 20 picogram per ml. Okay, मतलब क्या हुआ? What is the basic like what I wanted to tell you is that menopause के बाद में क्या होता है? estrogen का लेवल कम होने लग जाता है, it will be less than 20 picogram per ml. Alright, so this was the value of estrogen hormone. अगर सपोज कीजिए किसी फीमेल बेबी के अंदर एट द एज ऑफ 8 और एट द एज ऑफ 9 ईयर ऑफ एज इफ शी डेवलप वेरी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर इतने लेवल पर पहुंच जाता है एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में, तो डेफिनेटली क्या होगा? शी विल बिगिन दी प्यूबर्टी। नाउ हम लोगों ने बात किया रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, क्या मतलब होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का। देन वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी लाइक उसके बाद में हमने किस टॉपिक के बारे में बात किया? वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। फाइनली वी केम टू द डायग्नोसिस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। नाउ लेट मी डिस्कस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। मैनेजमेंट ऑफ प्रिकॉशियस puberty, how the management can be helpful here? We can go for the firstly we can go for the drugs, pharmacological management की हम लोग बात कर सकते हैं। If you talk about the drugs, firstly there is a famous drug that is the medroxyprogesterone acetate. Medroxyprogesterone acetate, this is the famous drug. You can say that is the 30 mg. How much you will give? 30 mg डेली ओरली, मतलब आपको ओरल सप्लीमेंट देना होता है कितना? 30 mg. व्हाट इज दैट? मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये क्या काम करता है? दिस मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इट विल सप्रेस द ओवेरियन हॉर्मोन्स। तो ओवेरी के हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह थे या उनके जो डेरिवेटिव्स थे उनको सप्रेस करने का काम कौन करेगा? मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ऑलराइट, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट के बाद जो सेकंड ड्रग विच वी कैन यूज हियर दैट इज दी लाइक डानाजोल। एक और फेमस ड्रग है डानाजोल, वेरी कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। डानाजोल का यूजुअल डोज जो है वो करीबन 200 to 300 mg orally, and usually it is given for 6 months. Usually it is given for the 6 months. And danazol also same, it will suppress the gonadal activity. What it means? ये गोनाड्स की एक्टिविटी को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। तो बेसिकली गोनाडल एक्टिविटी की आप क्या बात करते हो? मतलब ओवरीज की एक्टिविटी जो है उनको सप्रेस कर देना। अगर प्यूबर्टी बिगिन हुई है डेफिनेटली ओवरीज में फोलिकुलोजेनेसिस बिगिन होगा। इफ द फोलिकुलोजेनेसिस बिगिन्स शी मे डेफिनेटली विल हैव ओवुलेशन, शी विल हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स।
तो उनको सप्रेस करने के लिए इफ यू वांटेड टू अचीव एनी ऑफ योर पेशेंट लाइक टेम्पररी अमीनोरिया, अगर टेम्पररी अमीनोरिया को अचीव करना है डेफिनेटली वी कैन प्रेस्क्राइब दी डानाजोल। सो डानाजोल क्या काम करती है? ये टेम्पररी अमीनोरिया की कंडीशन क्रिएट करती है। डानाजोल के द्वारा आप यू कैन सप्रेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस यू कैन सप्रेस दी थैलार्की। आप इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हो? सप्रेस कर सकते हो। वी कैन सप्रेस द थैलार्की, वी कैन सप्रेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डानाजोल, बिकॉज व्हाट हैपेंस, द डानाजोल मेनली सप्रेस द गोनाडल एक्टिविटी, और गोनाडल एक्टिविटी का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोजन एक्टिविटी। सो वंस द एस्ट्रोजन एक्टिविटी स्टॉप, फीमेल विल नॉट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, शी विल नॉट हैव द प्रॉपर थैलार्की। ऑलराइट गाइस, सो ये दो फेमस ड्रग्स थी जिनके बारे में हमने बात किया रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रीकोशियस puberty. All right, medroxyprogesterone acetate and another one was the danazol. All right, इसके अलावा other than that pharmacological management के अलावा what is the another management? हम और क्या कर सकते हैं? We can go for surgical management. Surgical management तभी possible है. Next is the like you can go for surgical management. Surgical management for what purpose? Why we are doing for surgical management? In case of any tumor, वी कैन गो फॉर ट्यूमर एक्सिशन। अगर कोई ट्यूमर है तो उसको निकाल सकते हैं, बिकॉज मैंने कहा था ट्यूमर जो है वो सिक्रेटरी ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर हार्मोन के लेवल को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अगर आपने कोज को निकाल दिया, जो कारण है उसको कट कर दिया, ऑब्वियसली सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो आपको क्या कर सकते हो? ट्यूमर एक्सिशन। अगर ब्रेन में ट्यूमर है वी कैन गो फॉर क्रेनियोटोमी। इफ द ट्यूमर इज प्रेजेंट इन टू द ओवेरियन और इन द एड्रेनल ग्लैंड वी कैन रिमूव द ट्यूमर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ प्रीकोशियस puberty. Now this is well clear. Let me discuss another topic. Precocious puberty के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, that is about the delayed puberty. Delayed puberty. So next is the delayed puberty. What is the meaning of delayed puberty? Very simple meaning. If the puberty begins, if puberty does not start even at the age of 16 years, then it is called as डिलेड प्यूबर्टी। तब आप इसको क्या कहोगे? यू कैन डेफिनेटली कॉल एज ए डिलेड प्यूबर्टी। मीन्स इफ द प्यूबर्टी डज नॉट स्टार्ट और डज नॉट बिगिन इवन एट द एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल कंप्लीट होने को है, बट स्टिल द बेबी इज नॉट प्रोड्यूसिंग, इज नॉट हैविंग द सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी, मीन्स यू कैन से इट इज ए डिलेड प्यूबर्टी। ऑल राइट, 16 साल की एज तक अगर प्यूबर्टी के लक्षण स्टार्ट नहीं होते, थैलार्की नहीं हो रहा है, एडेनार्की नहीं है, मेनार्की, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं है। देखिएगा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल, थैलार्की, ये सारे हर एक फीमेल या मेल बेबीज के अंदर, मेल के अंदर बेसिकली थैलार्की वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, मेल के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट देयर वॉइस चेंजेस होना, बेसिकली हेयर ग्रोथ होना, उनकी हाइट बढ़ना, वो सारे मेल के लिए प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं। फीमेल की अगर बात करूं तो थैलार्की होना मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स का होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का बिगिन होना। ये सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, दे मस्ट बिगिन, दे शुड स्टार्ट, बट दे शुड स्टार्ट एट द प्रॉपर एज। जो 12 से 16 साल की जो एक एज है, यूजुअली उस एज में बिगिन होना चाहिए। इफ द फीमेल डज नॉट बिगिन द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सिम्टम्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इवन 16 साल की एज के बाद में भी नहीं होते हैं, डेफिनेटली इट इज इंडिकेटर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फीमेल। हो सकता है उसमें हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकता है उसके अंदर कोई बड़ा कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो जो अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ, हमें पता नहीं चला बेबी की एज में, हो सकता है वहां पे ब्रेन में कोई लीजन्स हो। तो उन सब के लिए हम लोगों को ये डिजीज जरूर पढ़ना चाहिए, दैट इज द डिलेड प्यूबर्टी। सो डिलेड प्यूबर्टी का मीनिंग आप सबके लिए क्लियर है। अब हम मैं बात करता हूं रिगार्डिंग द ईटियोलॉजी ऑफ डिलेड प्यूबर्टी, कि डिलेड प्यूबर्टी का कारण क्या है। The etiology of delayed puberty. So what is the basic etiology of the delayed puberty? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा कालमान सिंड्रोम। So guys, if you talk about the etiology, you can say that is the gonadal agenesis. आप किसकी बात कर सकते हो? You can tell that is the gonadal agenesis, means gonads का डेवलपमेंट नहीं होना। Gonads means I am talking about the ovaries.
So if the ovaries are not developed, because like it is very possibilities agenesis, मैंने सब आप लोगों को like previous sessions में discuss किया था. We have discussed regarding the Mullerian duct, we have discussed regarding the urogenital sinus. Mullerian duct and urogenital sinus जो कि रीढ़ का निर्माण करते हैं, they are mainly responsible for the development of ovaries. If there is a problem in the Mullerian duct, then definitely the patient will have the gonadal agenesis. So gonadal agenesis, then definitely if the ovaries are not present, then it can lead to delay in the puberty. Number 2, Kallmann syndrome. इसके बारे में बात करते हैं. What is the Kallmann syndrome? Guys, like Kallmann syndrome, it's one of the very major problem. Kallmann syndrome means you can say hypogonadotrophic hypogonadism. Hypogonadotrophic hypogonadism. What it means? Hypogonadotrophic means what? Hypogonadotrophic means hypogonadotrophic means what? Gonadotrophic means GnRH deficiency. What deficiency? GnRH deficiency. If there is a deficiency of GnRH, then definitely there will be the deficiency of FSH and LH, and it will lead to hypogonadism. Means अगर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ही प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, डेफिनेटली ओवरी विल नॉट फंक्शन. दैट इज द मीनिंग. हाइपोगोनेडोट्रोफिक मींस डेफिशिएंसी ऑफ जीएनआरएच एंड दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी या impaired growth of the gonads or ovaries. That is the hypogonadotrophic hypogonadism, and the problem is called as Kallmann syndrome. So it is a congenital disorder. What it is? It is basically a